Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to learn about how to analyze investable banks and NBFCs. यहाँ पे हम फोकस करेंगे बैंकिंग सेक्टर पर। हम जानेंगे कि बैंकिंग लैंडस्केप क्या होता है, what are the private and public banks in India, what is the role of RBI and what are the key regulations when it comes to the banking sector companies and how to analyze बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स। तो जहां तक बात करें ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ banks and NBFCs, wherein NBFCs is nothing but non-banking financial companies which focus on the lending activities and other non-banking financial activities. तो यहाँ पे जो भी NBFCs होती हैं, unlike the banks, they cannot provide cash deposits facility for their customers. So banking system basically plays an important role in the overall क्रेडिट फ्लो एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्रेडिट फ्लो का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द बैंक्स, द क्रेडिट फ्लो इन फॉर्म ऑफ लोन्स हैपेंस फ्रॉम दीज बैंक्स टू individuals and other businesses. When it comes to the overall Indian banking system, it is divided into प्राइवेट बैंक्स एंड नॉन प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड या कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक है। वहीं पे टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, public sector banks are mostly government undertakings. These banks include mostly the banks like SBI or Bank of Baroda. Talking about the NBFCs, which is non-banking financial companies, few important companies are like Bajaj Finance, Muthoot Finance or Shriram Finance. So total assets in the overall banking sector in India has crossed around 300 lakh crore. So these public sector banks are owned by the government, whereas the private sector banks are mostly the private entities, wherein these private banks also follow all the RBI rules and guidelines but are run by private entities. NBFCs यानी कि non-banking financial companies are mostly not regulated like banks, but they offer loans, leasing and microfinance to individuals and other businesses. RBI यानी कि Reserve Bank of India, it plays a key role when it comes to the banking sector policies and regulations. So RBI basically creates and regulates monetary policies. It also takes care of the interest rates. Say for example, if the economic cycle is in certain situation wherein the repo rates have to be reduced, the RBI comes into picture, जहाँ पे RBI रेपो रेट्स की दरों में कटौती करता है और सर्टेन बेसिस पॉइंट्स की कटौती के साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले समय में लोन्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ऑन द अदर साइड इट ऑल्सो कैन इंक्रीज द रेपो रेट वेरिन इट इन बेसिकली इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट्स। तो आरबीआई बेसिकली एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करता है टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड उनको कहीं और सोर्सेस से कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। सो आरबीआई टेक्स केयर ऑफ सर्टेन लिक्विडिटी रेशियो लाइक CRR, जहां पे cash reserve ratio, banks has to basically keep a certain percentage of deposits with RBI. SLR यानी कि statutory liquidity ratio which is investment in government securities, and it also comes with NPA norms यानी कि non performing asset के जो norms होते हैं। like for example, अगर किसी ने certain बैंक से लोन ले रखा है और वो 90 डेज के लिए रीपे नहीं कर पाता इंटरेस्ट या प्रीमियम्स, तो ऐसे केसेस में वो जो लोन उसने ले रखा है वो एनपीए में चला जाता है। तो इसके लिए भी जो नॉर्म्स होते हैं वो आरबीआई मॉनिटर करता है। इसके साथ ही साथ बेसल 3 नॉर्म्स हैं, बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड्स के अराउंड ये पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं जो कि आरबीआई मैंडेट करता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है इन सभी रेगुलेशंस का। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक का CRR इज टू SLR रेशियो जो है ये ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, लोअर लेंडिंग होगी और ये बैंक्स के ओवरऑल प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट, दीज आर इम्पोज्ड बाय द RBI एंड व्हेन वी आर एनालाइजिंग इन्वेस्टेबल कंपनीज इन बैंकिंग सेक्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर अस टू एनालाइज अराउंड। इसके साथ ही साथ when we are analyzing the banking sector stocks, it is very different from analyzing the non-financial companies, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के फाइनेंशियल रेशियोज भी आते हैं। ठीक है, सो फॉर बैंक्स की फाइनेंशियल रेशियोज एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स हेल्प अस assess the performance, risk
एंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि प्रॉफिट ऑन लोन्स वर्सेस इंटरेस्ट पेड के अगेंस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें HDFC बैंक का जो NIM है वो करीब करीब 4% के आसपास है। इट स्टेट्स दैट दिस पर्टिकुलर बैंक इज हेल्दी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट ऑन लोन्स वर्सेस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्रॉस एंड नेट NPA यहाँ पे हम देखें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये एसेट क्वालिटी इंडिकेट करता है। एग्जांपल के तौर पे HDFC बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 1.2% के आसपास है। SBI का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट करीब करीब 2.8% के आसपास है। सो बेसिकली ये जो रेशियोज हैं, दीज रेशियोज एक्चुअली हेल्प अस टू कंपेयर अक्रॉस द पीयर्स व्हेन वी आर एनालाइजिंग द बैंकिंग सेक्टर कंपनीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एवरग्रीन रेशियो, चाहे हम बैंक्स को एनालाइज कर रहे हो चाहे हम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज कर रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं हमारे लिए। यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो। सो बेसिकली दीज बोथ मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। जहाँ पे ROE 15% से ज़्यादा अगर है तो वो एक अच्छा ROE माना जाता है, एंड ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली अगर 1% से ज़्यादा है देन वी कंसीडर दैट एज अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिटर्न ओवर एसेट्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग कंपनीज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट रेशियो, जहां पे हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मींस सेफर बैंक। RBI के जो नॉर्म्स कहते हैं मिनिमम 11.5% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए अंडर बेसल 3। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो ICICI बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 17% के आसपास है। दिस मीन्स जो भी RBI के नॉर्म्स हैं 11.5% उससे वे हायर है। ठीक, इसके साथ ही साथ कैसा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का रेशियो। तो हायर कासा मीन्स चीपर फंड्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोटक बैंक का जो कैसा रेशियो है 50% के आसपास है, विच इज एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल द कैसा रेशियो। इसके साथ ही साथ व्हेन इट कम्स टू द NBFCs there are important additional metrics that we have to take care of while analyzing the NBFCs। AUM ग्रोथ यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है पास्ट कुछ सालों के लिए। वी हैव टू एनालाइज द AUM ग्रोथ, एंड loan book quality is one important metric which we have to analyze when we are analyzing the NBFC companies। So basically more retail loan book versus secured loan books अगर है तो वहाँ पे lower risk है when it comes to the NBFC companies। इसके साथ ही साथ cost of fund versus yield, ये एक important metric है। So efficient NBFCs जो होती हैं they actually maintain a good spread when it comes to the cost of funds versus yield। ठीक है, so to summarize the key ratios that we are going to use when analyzing the investable banks are net interest margin, and average good range has to be around 3 to 4% when it comes to the net interest margin. Higher is better spread. When it comes to the credit ratio deposit, it has to be about 70 to 90% range, and it is basically for efficient loan deployment। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो RBI का मैंडेट है 11.5% से ज़्यादा होना चाहिए। It basically tells us about the financial quotient। Gross NPA ratio has to be less than 3%। It is used for measuring the loan book। So lower the gross NPA ratio, safer is the loan book। इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया 1 to 2% के बीच में होना चाहिए। So it basically tells about profitability on assets। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 12%। यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स हैं दैट इज कैलकुलेटेड अंडर द रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसा रेशियो के अंदर वी लुक फॉर द लोअर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो। सो बेसिकली कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज़ टू बी लेस देन 50%, विच इज नथिंग बट बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। So all in all, when it comes to the NBFCs and the banking sector companies, banks and NBFCs both are essential for overall economic growth, and while choosing companies, make sure the companies have low NPAs यानी कि उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो है वो कम है, हायर ROE एंड ROA यानी कि उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट्स है वो हायर है, एंड हेल्थी कैसा रेशियो एंड नेट इंटरेस्ट
margin. इसके साथ ही साथ the companies or the banks should also have consistent growth and strong governance. And to sum up, most important of all, stay updated with RBI guidelines and macroeconomic trends when analyzing banks and NBFCs. इस वीडियो में इतना ही. See you in the next video. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.